নমস্কাৰ আজি ক্লাছ 11 মাইক্ৰো ইকনমিক্সৰ ব্যষ্টিবাদী অৰ্থবিজ্ঞানৰ কনজিউমাৰ বিহেভিয়াৰৰ এটা স্পেশাল টপিক লৈছো। লাষ্ট সিৰিজ কেটাত আমি বুজিছিলো কি কাৰ্ডিনেল ইউটিলিটি এনালাইসিসৰ কনজিউমাৰ ইকুইলিব্ৰিয়াম ইজ ভোক্তাৰ ভাৰসাম্যতা ক্ৰমহ্ৰাসমান প্ৰান্তিক উপযোগিতা বিধিৰ দ্বাৰা ভোক্তাৰ ভাৰসাম্যতা সমপ্ৰান্তিক উপযোগিতা বিধিৰ দ্বাৰা। ওকে ক্লিয়াৰ। इतिया আজি এটা স্পেশাল टॉपिक लैसो रिलेटेड टू कंज्यूमर बिहेवियर। ओके मैं हिंदी तो बार कह दीसो। आज हम लोग एक स्पेशल टॉपिक लिया हुआ है क्लास 11 के लिए, वो है कंज्यूमर बिहेवियर चैप्टर से रिलेटेड। ओके लास्ट क्लास में हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन किया था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ ईएमयू। क्लियर। तो आज जो टॉपिक लिया वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक वो हो गया कंज्यूमर सरप्लस। मैं कब বিচাৰিছো আজি টপিকটো হৈছে ভোক্তাৰ উদ্ধৃত্ত। ক্লিয়াৰ। তেতিয়াহ'লে বলা আমি এটা আৰম্ভ কৰোঁ। মই লিখি থৈছোঁ চোৱা কনজিউমাৰ সাৰপ্লাস মিন্স ভোক্তাৰ উদ্ধৃত্ত। ক্লিয়াৰ। তে ভোক্তাৰ উদ্ধৃত্ত কনসেপ্টটো পোন প্ৰথমে একচুয়ালি আলোচনাৰ বিষয় হিচাপে আনিছিলে কোনে? মই লিখি থৈছোঁ চোৱা ফ্ৰেঞ্চ ইকনমিষ্ট এজে ডিউপিট 1844। ক্লিয়াৰ। মিন্স 1844ত প্ৰথম কনজিউমাৰ সাৰপ্লাস কনসেপ্টটো ফ্ৰেঞ্চ ইকনমিষ্ট ডিউপিটে introduced করেছিলে। ক্লিয়ার। আফটার দ্যাট ইট ইজ মডিফাইড বাই হু? আলফ্রেড মার্শাল। আলফ্রেড মার্শালের নাম আমি জানোই, হয় না? 1879ত মিন্স ইলাবরেট করেছিলে কোনে? আলফ্রেড মার্শালে উইথ দ্য হেল্প অফ মার্জিনাল ইউটিলিটি কার্ভ। ক্লিয়ার। গোল লেটার সেই কনসেপ্টটো আকো এক্সপ্লেইন করেছিলে বোল্ডিং। হিক্স অলসো এক্সপ্লেইন দ্যাট কনসেপ্ট উইথ দ্য হেল্প অফ ইনডিফারেন্স কার্ভ বিকজ আমি অলরেডি জানো হিক্স বিলিভড অন অর্ডিনাল ইউটিলিটি analysis. Clear. But cardinal concept actually explained by Alfred Marshall with the help of marginal utility curve. Clear. Goal. The question hoise what is consumer surplus? The ভোক্তাৰ উদ্ধৃত্ত মানে কি? সিম্পল কনসেপ্ট। এজন ভোক্তা বা এজন কনজিউমাৰে বজাৰত ধৰি লোৱা তুমি কিবা এটা বস্তু কিনিব গৈছা। ক্লিয়াৰ। সাপোজ তুমি বজাৰত গৈছা 1 কেজি আপেল কিনিবলৈ। মায়ে কৈছে বা দেউতাই কৈছে কলেজৰ পৰা আহোঁতে 1 কেজি আপেল কিনি লৈ আহিবা। ক্লিয়াৰ। তুমি যেতিয়া বজাৰত গৈ পেলাই আপেল 1 কেজি কিনিব গৈছা, ইন দ্যাট সিচুৱেশ্যন আপেলৰ কেজিৰ দাম ধৰি লোৱা লৈছে 120 টকা কেজি। মিন্স পাৰ কেজি আপেলৰ দাম 120 টকা। ক্লিয়াৰ দেই। কিন্তু তুমি 1 কেজি আপেল কিনাৰ আগত দূৰৰ পৰা তুমি আপেলখিনি চাই আছিলা, কিনিম বুলি গৈ আছা। তেতিয়া তোমাৰ ফিল হৈছে যে আপেলখিনি ইমান ভাল, সো মই 150 টকা হলে 1 কেজি কিনি লম। মিন্স ইউ আর রেডি টু পে 150। মিন্স এজ এ কনজিউমার ইউ ফিল দ্যাট bundle of apple give you maximum level of satisfaction. Means আপেলৰ পৰা তুমি satisfaction পাম বুলি ভাবিছা কিমান? 150। Clear? সেই কাৰণে you are ready to pay 150. Means whatever amount you willing to pay, that amount depends upon your marginal utility. Means কথাটো এনেকাও বুজিব পাৰা তুমি বস্তুটো উপভোগ কৰি সন্তুষ্টি পাইছা বহুত বেছি, সেইকাৰণে চাগে তুমি ভাবিছা মই 150 টকা পে কৰিব পাৰোঁ। ক্লিয়াৰ। বিকজ স্যাটিসফ্যাকশনটো বেছিকে পাইছা। কিন্তু একচুয়ালি মার্কেটত 1 কেজি আপেলৰ দাম 120 টকা। তার মানেটো এইটো হৈছে ইউ আর রেডি টু পে। মিন্স ইউ রেডি টু পে এজ এ কনজিউমার 150 রুপিস। বাট ইউ একচুয়ালি পেইজ কিমান? বজাৰৰ যিটো প্ৰিভেইলিং প্ৰাইস 120 টকা। ডেফিনেটলি ইন দ্যাট সিচুৱেশ্যন তোমাৰ স্যাটিসফ্যাকশন টু এক্সেস আহি যাব কিমান? 30 ইউনিটস। ক্লিয়াৰ। মিন্স 30 রুপিস যিটো তুমি পালা এক্সেস হাতত তোমাৰ থাকি গ'ল, হেতুকে কোৱা হয় কনজিউমাৰ সারপ্লাস। ক্লিয়াৰ। সো সিম্পলি আমাৰ ল্যাঙ্গুৱেজত যদি তুমি বুজা তেতিয়াহ'লে ভোক্তাৰ উদ্ধৃত্ত মানে হৈছে ভোক্তা এজনে কোনো এক নিৰ্দিষ্ট দ্ৰব্যৰ দিব খোজা দৰ। ওকে দিব খোজা দৰ আৰু প্ৰকৃততে দিয়া দৰৰ যিটো পাৰ্থক্য, তাৰ পাৰ্থক্যটোৰ নামেই হৈছে भुगतान उद्धृत। क्लियर। मतलब मैं हिंदी में भी बोल देता हूँ ये चीज़। मतलब एक कंज्यूमर मान लो एक कोई एक चीज़ से उसको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है 150, तो वो सोच रहा है मुझे 150 पे करना है वो चीज़ के लिए। मान लो 1 केजी एप्पल, लेकिन मार्केट में वही चीज़ का प्राइस एक्चुअल प्राइस हो गया 120। मतलब एक्चुअल प्राइस कम है और यू आर रेडी टू पे ज़्यादा है।
मतलब 150 तुम इसलिए रेडी हो पे करने के लिए बिकॉज है तुमको सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिल रहा है। सो इसलिए शायद एज ए कंज्यूमर यू फील टू पे मोर। क्लियर? लेकिन तुम दिया वही जो मार्केट में एक्चुअल प्राइस है कितना 120, तो फाइनली तुमको 30 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिल गया कि नहीं, है ना? जो 30 रुपीज़ तुमको एक्स्ट्रा मिल गया दिस इज सेड टू बी कंज्यूमर सरप्लस। सो सिंपली बोल सकते हो कंज्यूमर सरप्लस का मतलब ये हो गया कंज्यूमर कितना सोचा देने के लिए और उसने एक्चुअली कितना पे किया। सोचा था ज़्यादा लेकिन पे किया कम, तो कंज्यूमर सरप्लस हो जाएगा उसका डिफरेंस। मतलब फाइनली कंज्यूमर सरप्लस नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन विलिंग टू पे एंड एक्चुअल पे। क्लियर? इसलिए शायद टॉसिक बोल के इकोनॉमिस्ट ने लिखा, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा कंज्यूमर सरप्लस इज द डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल प्राइस एंड द एक्चुअल प्राइस। पोटेंशियल प्राइस नथिंग बट व्हाट कंज्यूमर विलिंग टू पे। क्लियर? एंड एक्चुअल प्राइस नथिंग बट मार्केट में जो प्राइस एक्चुअली चल रहा है वो चीज़ का। मतलब सिंपली कोई एक चीज़ का प्राइस मार्केट में जितना होगा और तुम जितना सोचा देने के लिए, मतलब तुमने सोचा ज़्यादा देने के लिए लेकिन मार्केट में वही चीज़ का प्राइस कम मान लो। क्लियर? सिंपली ये चीज़ बोल सकते हो तुम विलिंग टू पे सोचा 10 रुपया दोगे वो चीज़ का, ठीक है, लेकिन मार्केट में एक्चुअल प्राइस उसका कितना मान लो 6 रुपीज़, तो मार्केट में एक्चुअल प्राइस 6 रुपीज़ वही तो तुम पे करोगे ना। थोड़ी तुम जो दुकानदार है ना, जो शॉपकीपर है, उसको थोड़ी बोलोगे मैंने सोचा था आपको 10 रुपया देना है इसलिए मैंने 10 रुपया लेके आया लेकिन आप 6 रुपया क्यों ले रहे हो, ये तो थोड़ी बोलोगे, नहीं बोलोगे। लेकिन तुम्हारा मन ही मन में इच्छा एक तो था ना कितना, मुझे 10 रुपीज़ पे करना है बिकॉज यू गेट मोर सेटिस्फैक्शन फ्रॉम दैट गुड। ओके, लेकिन मार्केट में वही चीज़ का प्राइस हो गया कितना 6, तो यू आर रेडी टू पे कितना 10 बट यू एक्चुअली पे इज कितना 6। सो इसका जो डिफरेंस बीच में आ गया ना 4 रुपीज़ का, दैट डिफरेंस इज सेड टू बी कंज्यूमर्स सरप्लस। क्लियर? तो ये चीज़ को अगर तुम देखो फॉर्मूला वाइज अगर देखो तो तुमको ये चीज़ मिल रहा है कंज्यूमर सरप्लस एक्चुअली द डिफरेंस बिटवीन व्हाट कंज्यूमर विलिंग टू पे एंड व्हाट ही एक्चुअली पेज। मतलब कंज्यूमर सरप्लस CS कंज्यूमर सरप्लस शॉर्ट फॉर्म में अगर देखो willing to pay difference and actually paid। ओके, मतलब तुमने विलिंग किया कितना 10 रुपया, मतलब यू आर रेडी टू पे कितना 10 रुपया, बट एक्चुअली तुमने पे किया कितना 6 रुपया। तो बीच वाला जो डिफरेंस हो जाएगा ना ₹4, दैट ₹4 इज सेड टू बी व्हाट कंज्यूमार्स सरप्लस। मीन्स ভোক্তাৰ উদ্ধৃত মানে হৈছে ভোক্তা এজনে কোনো এটা দ্ৰব্যৰ বিপৰীতে যিখিনি দৰ দিব বিচাৰিছে, ইচ্ছা কৰিছে দিবলৈ। ক্লিয়াৰ? আৰু তেওঁ প্ৰকৃততে কিমান দিছে দাম, দিব বিচাৰিছে আৰু তেওঁ দিছে, সেই দুটাৰ মাজৰ যিটো পাৰ্থক্য তাকে কোৱা হয় কনজিউমাৰ সাৰপ্লাস বা ভোক্তাৰ উদ্ধৃত। ক্লিয়াৰ? তে কুৱেশ্যন হ'ল কনজিউমাৰজনে যে উইলিং টু পে কৰিব বিচাৰিছে, মিনছ দিব যে বিচাৰিছে, অ'কে, সেই দিব বিচৰাটো ডিপেণ্ড কৰে কিহৰ ওপৰত, মাৰ্জিনেল ইউটিলিটিৰ ওপৰত। ক্লিয়াৰ? তাৰ মানে মই কথাটো এইটো ক'ব বিচাৰিছোঁ কনজিউমাৰজনে যিটো পে কৰিব বিচাৰিছে, অ'কে, চ' কনজিউমাৰ হোৱাট এভাৰ উইলিং টু পে means according to Marshall, okay, according to Alfred Marshall, okay, according to Alfred Marshall or mote what consumer willing to pay, clear? Consumer what willing to pay jikhini teo dibo bicharise that amount, okay, so that amount actually depends upon marginal utility of that goods, okay। তাৰ মানে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ মাৰ্শ্বেলে কৈছে কনজিউমাৰ এজনে যিমানখিনি প্ৰাইচ তেওঁ দিব বিচাৰে সেই এমাউণ্টখিনি ডিপেণ্ড কৰে কিহৰ ওপৰত, সেই দ্ৰব্যটোৰ ছেটিছফেকশ্যন বা প্ৰান্তিক উপযোগিতাৰ ওপৰত। মিনছ হোৱাট এভাৰ উইলিং টু পে বাই দ্য কনজিউমাৰ, দ্যাট এমাউণ্ট ডিপেণ্ডছ আপন মাৰ্জিনেল ইউটিলিটি।
ক্লিয়াৰ অফ দ্যাট গুডছ অ'কে মিনছ ভোক্তাজনে যিখিনি দৰ দিব বিচাৰিছে দ্ৰব্যটোৰ বিপৰীতে সেইটো সদায় প্ৰান্তিক উপযোগিতাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে ক্লিয়াৰ মিনছ হোৱাট এভাৰ প্ৰাইচ উইলিং টু পে কনজিউমাৰ দ্যাট উইলিং টু পে ডেফিনেটলি ডিপেণ্ডছ আপন মাৰ্জিনেল ইউটিলিটি একৰ্ডিং টু আলফ্ৰেড মাৰ্শ্বেল ক্লিয়াৰ আৰু যদি সেইটোৱে হয় তেতিয়াহ'লে আমি কনজিউমাৰ ছাৰপ্লাছ কনচেপ্টটো এটা টেবুলৰ সহায়ত আমি বস্তুটো দেখুৱাব পাৰোঁ ক্লিয়াৰ যদি টেবুলত তুমি চোৱা তেতিয়াহ'লে বস্তুটো এনেকৈ চাব পাৰা ছাপ'জ ইউনিটছ মই লিখি ল'লোঁ ইউনিটছ অ'কে willing to pay clear willing to pay পিছত লিখো marginal utility of that goods মই x বুলি লিখিলো এটো তোমাৰ willing to pay clear willing to pay clear willing to pay হৈ গল আৰু এটো হৈ গল actual price clear actual price হল আৰু এটো হৈ যাব তোমাৰ consumer surplus consumer surplus मैं full form में लिखी दिसो consumers what consumer surplus means units marginal utility of that goods willing to pay actual price consumer surplus clear এই বস্তুটো যদি তুমি সোয়া তেতিয়া হলে তোমার কনসেপ্টটো ক্লিয়ার হৈ যাব ক্লিয়ার এই বস্তুটো যদি তুমি সোয়া তেতিয়া হলে ইয়াত সাপোজ কনজিউমাৰ 1 ইউনিট 2 ইউনিট 3 ইউনিট 4 ইউনিট কনজিউম কৰিব ক্লিয়াৰ সিৰিয়ালি কনজিউমাৰ চাইটা ইউনিট যদি কনজিউম কৰে কিবা এটা পাৰ্টিকুলাৰ গুডছৰ ধৰি লও ফাৰ্স্ট ইউনিটত হি এমইউ পাব মাৰ্জিনেল ইউটিলিটি পাব সেই দ্ৰব্যটোৰ প্ৰান্তিক উপযোগিতা পাব ধৰি লোৱা 12 সেকেন্ডত ধৰি লোৱা তেও 8 পাব থাৰ্ড ইউনিটত ধৰি লোৱা 6 পাব ফোৰ্থ ইউনিটত ধৰি লোৱা 4 পাব means we already know according to the law of DMU when consumer consume more his or her marginal utility gradually diminishes ভোক্তাজনে যিমান দ্ৰব্য ক্ৰয় কৰে বা উপভোগ কৰে প্ৰান্তিক উপযোগিতা ক্ৰমান্বয়ে হ্ৰাস পায় আমি হেতু DMU ৰ পৰা জানো ক্লিয়াৰ তেতিয়া হলে ফাৰ্স্ট ইউনিটত যদি এমইউ বেছি তেতিয়া উইলিং টু পে definitely willing to pay ধৰি লোৱা হৈ যাব কিমান বেছি ক্লিয়াৰ মই দখে লিখিছো সেকেন্ডত যদি মাৰ্জিনেল ইউটিলিটি কমিছে তেতিয়া উইলিং টু পে হৈ যাব 9 ইয়াত যদি কমিছে তে উইলিং টু পে হৈ যাব 8 ইয়াত যদি এমইউ কমিছে তে উইলিং টু পে হৈ যাব 6 তাৰ মানে মই কব বিচাৰিছো when marginal utility gradually diminishes then consumer also diminishes his or her willing to pay means willing to pay whatever that amount definitely decreases because why marginal utility of that goods also decreases means মই কব বিচাৰিছো ভোক্তাজনে যিমানে দিব বিচাৰিব হেতু প্ৰান্তিক উপযোগিতাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব যদি প্ৰান্তিক উপযোগিতা হ্ৰাস পায় তেতিয়া হলে দিয়াৰ ইচ্ছাটো কমিব clear তেতিয়াহলে whatever price willing to pay that depends upon marginal utility clear means जो प्राइस वो willing to pay मतलब देने के लिए सोचा ना वही प्राइस डिपेंड करेगा उसका मार्जिनल यूटिलिटी के ऊपर अगर मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ेगा तो willing to pay भी बढ़ेगा मार्जिनल यूटिलिटी घटेगा तो willing to pay भी घटेगा क्लियर लेकिन मार्केट में वही चीज का मान लो एक्चुअल प्राइस मार्केट में वही चीज का मान लो एक्चुअल प्राइस मान लो कितना पकड़ लो 2 मैंने 2 पकड़ लिया क्लियर सो एक्चुअल प्राइस अगर मार्केट में 2 तो देखो क्या होता है तुमने देना चाहा 10 बिकॉज एमयू ज्यादा तो देना चाहा ज्यादा लेकिन एक्चुअल प्राइस 2 मार्जिनल यूटिलिटी घट गया तो विलिंग टू पे घट गया लेकिन एक्चुअल प्राइस तो 2 ही था उसका मार्जिनल यूटिलिटी घट गया विलिंग टू पे घट गया लेकिन एक्चुअल प्राइस तो 2 ही था ना मार्जिनल यूटिलिटी घट गया एक्चुअल पे 2 ही रहेगा लेकिन विलिंग टू पे घट गया मतलब मार्केट में एक्चुअल प्राइस वही चीज का ₹2 है दिस इज द एक्चुअल प्राइस प्रिवेल इन द मार्केट लेकिन तुमने जो सोचा पे करने के लिए वो ये है चार्ट मतलब योर विलिंग टू पे ग्रेजुअली डिमिनिशेस बिकॉज एमयू डिक्रीजेस व्हाटएवर यू विलिंग टू पे दैट अमाउंट डिपेंड्स अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी मीन्स भोक्ता एजने जिमाने दर দিব বিচাৰে না সেই দৰটো ডিপেন্ড কৰে প্ৰান্তিক উপযোগিতাৰ ওপৰত আৰু প্ৰান্তিক উপযোগিতা যদি হ্ৰাস পাইছে তেতিয়া হলে দিয়াৰ ইচ্ছাটো কমিব ক্লিয়াৰ
কিন্তু বজাৰতো প্ৰকৃত দৰ এইটো হয় দ্ৰব্যটোৰ ক্লিয়াৰ তেতিয়াহ'লে চোৱা কি হৈ আছে প্ৰথমটো গোটত প্ৰথমটো ফাৰ্ষ্ট ইউনিটত দিব বিচাৰিছিলে 10 দিলে 2 কনজিউমাৰ সাৰপ্লাস হৈ গ'ল 8 দিব বিচাৰিছিলে 9 দিলে 2 হৈ গ'ল সাৰপ্লাস 7 দিব বিচাৰিছিলে 8 দিলে 2 সাৰপ্লাস 6 দিব বিচাৰিছিলে 6 দিলে 2 সাৰপ্লাস কিমান 4 means willing to pay 10 actual pay 2 so that difference is said to be what consumer surplus 10 minus 2 8 9 minus 2 7 8 minus 2 6 6 minus 2 4 so that is nothing but consumer surplus তেতিয়াহ'লে out of these 4 units यदि तुम सुआ मैं चारों यूनिट को एक साथ अगर जोड़ दो ना तो उसको टोटल सरप्लस मिल रहा है ये टोटल इसका सम मतलब इसका सम हो रहा है कितना 8 7 कितना हो रहा है 8 7 हो रहा है 15 21 25 है ना मतलब 8 7 15 21 25 मतलब उसको टोटल सरप्लस मिल रहा है कितना 25 क्लियर मतलब 8 7 मतलब 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 4 का अगर जोड़ दो तो उसको टोटल सरप्लस मिल रहा है कितना 25 क्लियर सो विलिंग टू पे और एक्चुअल पे का जो डिफरेंस होगा वही होगा कंज्यूमर सरप्लस 1 यूनिट के लिए देखो तो 8 है सेकंड में 7 है थर्ड में 6 है फोर्थ में 4 है तो ग्रैंड टोटल अगर 4 यूनिट्स में देखोगे ना तो 25 उसको सरप्लस मिल रहा है क्लियर सो दिस इज सेड टू बी कंज्यूमर सरप्लस अभी ये कंज्यूमर सरप्लस जो 5 निकला ना तो 25 अगर निकला तो उसका तुम टोटल कंसेप्ट इस हिसाब से भी निकाल सकते हो एक फॉर्मूला दे रखा हूँ ये जो है ना मार्जिनल यूटिलिटी ये मार्जिनल यूटिलिटी को ना ये टेबल में ओमिट कर देता हूँ इसके हिसाब से भी एक फॉर्मूला तुम बना सकते हो इसको मैं ओमिट कर देता हूँ बिकॉज वाई आमी अलरेडी जानो मैं अखमितो কৈ দিছো আমি অলরেডি জানো কি এমইউ টোটাল আকৌ আমি জানো কি টিউ एमयू टोटल की टीयू मीन्स समेशन एमयू इज नथिंग बाट टीयू यार পৰা যদি তুমি টিউ উলাই দিয়া তেতিয়ালে এমইউ সামেশন কৰিব লাগিব मीन्स 12 প্লাস 8 প্লাস 6 প্লাস 4 হয় না এইখিনিক যদি কৰা তেতিয়া 12 আৰু 8 কৰিলে তোমাৰ হৈ আছে 20 12 আৰু 8 20 26 ন 20 26 30 তাৰ মানে টোটাল ইউটিলিটি তোমাৰ হৈ আছে 30 मीन्स टोटल यूटिलिटी किमान 30 क्लियर तेतिया हले तुमी यार पर एक फर्मुला ओलाब पारा केनेका ओलाब पारा मैं डायग्रामेटिकली वस्तुটো देखुवाम क्लियर एफाले 25 और मार्केटत प्राइस आছিলে किमान 2 न तेतिया हले यार पर तुम्हार फर्मुला प्राइस आছিলে किमान पर यूनिटर प्राइस आছিলে ₹2 मैं लिखि ललो हल तेतिया हले कंज्यूमर सरप्लस और मैं याते लिखि लइसु कंज्यूमर्स की सरप्लस क्लियर सो कंज्यूमर सरप्लस और यदि फर्मुला तो चुआ तेतिया हले तुमार की होय আছে टोटल यूटिलिटी মই তো এফালে লিখি লও प्रथम 12 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 4 হয় না তেতিয়া হলে এইখিনি লাগিব মোৰ ফর্মুলাটো কাৰণে হেখিনি মুছি লৈছো তেতিয়া হলে कंज्यूमर सरप्लस नथिंग बाट टोटल यूटिलिटी माइनस number of units purchased into price per unit okay price what per unit ये अगर करोगे ना तो तुम्हारा कंज्यूमर सरप्लस निकल जाएगा तो टोटल यूटिलिटी कितना निकला था तुम्हारा इधर 12867 मतलब एमयू का समेशन हो गया तुम्हारा टीयू है ना तो ये चीज़ अगर मिला था हम लोगों को तो एमयू का समेशन हो गया 12 8 6 12 8 20 26 30 मतलब ये समेशन तुमको मिल गया 30 क्लियर तो समेशन अगर 30 मिल गया इसको मैं ओमिट कर देता हूँ ये ओमिट कर दिया तो मतलब टोटल यूटिलिटी तुमको मिल गया कितना सम ऑफ दिस
मार्जिनल यूटिलिटी का समेशन तुमको मिल गया 30 माइनस नंबर ऑफ यूनिट्स तुमने परचेज किया कितना 4 और मार्केट में पर यूनिट का प्राइस था कितना 2। क्लियर? अगर 2 था तो 30 माइनस ये अगर मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा कितना 4 यूनिट्स के अगेंस्ट में 2 प्राइस के हिसाब से 8। क्लियर? तो फाइनली तुमको 8 माइनस कर दो तो तुमको 22 कंज्यूमर सरप्लस मिल रहा है। क्लियर? ये मनी सेंस से नहीं, सेंस से अगर देखो तो कंज्यूमर सरप्लस ये चीज़ निकल रहा है। क्लियर? तो फाइनली ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा ना, दिस इज नथिंग बट द consumer surplus means total utility minus number of units purchased into per unit price. So this is the theoretical formula of consumer surplus. Clear? हो गया। लेकिन जो टेबल मैंने बनाया था ना, टेबल में तुमको सरप्लस कितना मिला था 25 मिला था, वो 25 मैंने लिख के रखा। क्लियर? तो फाइनली कंज्यूमर सरप्लस नथिंग बट व्हाट कंज्यूमर एक्चुअली विलिंग टू पे एंड व्हाट ही एक्चुअली पेड। क्लियर? उसका जो डिफरेंस हो गया ना, वही डिफरेंस को बोलता है कंज्यूमर सरप्लस। क्लियर? एंड व्हाट ही विलिंग टू पे, दैट विलिंग टू पे अगेन डिपेंड्स अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी। क्लियर? मीन्स कंज्यूमर एजने भोक्ता एजने कोनखिनि दाम দিব বিচাৰিছে বা কি দাম দিব বিচাৰিছে দিয়াৰ ইচ্ছা কৰিছে সেইটো সদায় নিৰ্ভৰ কৰে সেই দ্ৰব্যটোৰ প্ৰান্তিক উপযোগিতাৰ ওপৰত। एकदम मनत रखिए लगा कथा। क्लियर? तो अगर ये चीज़ हो रहा है ना तो इसके अगेंस्ट में तुम कंज्यूमर सरप्लस कॉन्सेप्ट डायग्रामेटिकली भी दिखा सकते हो। क्लियर? अगर डायग्रामेटिकली चीज़ देखोगे तो डायग्रामेटिकली इस हिसाब से होता है, मतलब ये हो गया तुम्हारा एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। इधर तुम दो चीज़ दिखाओ, प्राइस ऑब्लिक एमयू। क्लियर? इधर हो जाएगा वो गुड्स जो तुमने कंज्यूम किया था। क्लियर? सो दिस इज द मार्जिनल यूटिलिटी कर्व एंड मार्जिनल यूटिलिटी कर्व नथिंग बट डिमांड कर्व। क्लियर? अकॉर्डिंग टू मार्शल, ये मार्शल का कॉन्सेप्ट मैंने बना रहा हूँ कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस का। क्लियर? तो मार्शल अगर कॉन्सेप्ट लोगे, मार्शल का कॉन्सेप्ट, तो मान लो कंज्यूमर कंज्यूम किया इतना, ओ क्यू यूनिट्स उसने परचेज किया, अगेंस्ट प्राइस कितना ओ पी प्राइस, मतलब ओ क्यू यूनिट्स उसने ओ पी प्राइस में परचेज किया। क्लियर? तो परचेज अगर किया तो इस पॉइंट में मैं ई लिख देता हूँ। ठीक है? इस पॉइंट में मैं एफ लिख देता हूँ। ठीक है? हो गया। तो अगर डायग्रामेटिकली चीज़ देखो तो कंज्यूमर टोटल यूटिलिटी वी ऑलरेडी नो द सम ऑफ एम यू इज नथिंग बट यू। तो ये जितना एम यू होगा ना, ये एम यू को अगर जोड़ दो तो हो जाएगा ओ क्यू, मतलब ओ क्यू इंटू, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी का अगर सम कर दोगे ना, मार्जिनल यूटिलिटी का अगर समेशन लोगे ना, मतलब मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ, मार्जिनल यूटिलिटी का अगर समेशन लोगे ना तो तुमको टी यू मिलेगा। तो ये जो मार्जिनल यूटिलिटी है ना ईच एंड एवरी पॉइंट में, वो सारा अगर तुम प्लस कर दो ना तो तुमको टी यू मिलेगा। इसका मतलब ये हो गया तुमको सारा टी यू मिल रहा है दिस एरिया, मतलब इतना एरिया तुमको टी यू मिल रहा है। क्लियर? मतलब दिस एरिया इज नथिंग बट दिस एरिया इज नथिंग बट टी यू। क्लियर? अगर दिस एरिया इज नथिंग बट टी यू तो तुमको ओवरऑल टी यू मिल रहा है, ओवरऑल टी यू मिल रहा है ओ क्यू ई एफ। क्लियर? ओ क्यू ई एफ। क्लियर? और तुम एक्चुअली इतना जो तुमने परचेज किया ना, ये जो परचेज किया इसका तुमने प्राइस पे किया पर यूनिट का ओपी, तो तुम ओपी और ओ क्यू का मल्टीप्लाई कर दो, ओपी इंटू ओ क्यू अगर मल्टीप्लाई कर दो तो तुमने टोटल स्पेंड किया ओ क्यू ई पी, मतलब दिस इज योर टोटल यूटिलिटी, दिस इज द एरिया यू एक्चुअली पेज। ओके? मतलब ये एरिया जो है ना ओ क्यू ई पी, दिस इज द एक्चुअल मनी यू स्पेंड, एक्चुअली यू स्पेंड। क्लियर? लेकिन तुमको टोटल यूटिलिटी मिल रहा है डायग्राम के हिसाब से ओ क्यू ई
एफ, बिकॉज व्हाट, मार्जिनल यूटिलिटी का अगर सम कर दो ना, ये जो मार्जिनल यूटिलिटी है ना, ये सब मार्जिनल यूटिलिटी, ये सब अगर सम कर दो तो तुमको टोटल यूटिलिटी मिलेगा। बिकॉज ऑलरेडी मैंने बोला समेशन ऑफ एम यू नथिंग बट टी यू। क्लियर? तो मैंने ये एरिया मुझे मिल गया, सारा जोड़ दो तो ओ क्यू ई एफ तुमको मिलेगा। क्लियर? तो फाइनली तुमको मिल गया क्या, total utility OQEF and total amount you actually spent OQEP। तो देखा जाए, अगर देखा जाए तुमको मिल रहा है टोटल यूटिलिटी OQEF, मतलब तुमको मिल रहा है टोटल यूटिलिटी इतना, है ना, लेकिन तुम पे कर रहे हो इतना अमाउंट का अगेंस्ट में तुम पे कर रहे हो इतना, मतलब यू एक्चुअली पेज दिस एरिया बट यू एंजॉय सेटिस्फैक्शन दिस एरिया। क्लियर? मतलब तुमको टोटल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है इतना, लेकिन उसका अगेंस्ट में तुम पे कर रहे हो टोटल इतना पर यूनिट प्राइस के हिसाब से। मतलब कंज्यूमर enjoy the satisfaction by this area against OQ amount, but you actually spent money how much, this area। Clear? मतलब इस हिसाब से अगर देखा जाए तो कंज्यूमर सरप्लस निकल रहा है, इस डायग्राम के हिसाब से अगर देखो तो कंज्यूमर सरप्लस निकल रहा है ये चीज़। क्लियर? क्या निकल रहा है देखो, कंज्यूमर्स सरप्लस, मैं इधर ही लिख देता हूँ, कंज्यूमर सरप्लस निकल रहा है ओ क्यू ई एफ। क्लियर? माइनस तुमने एक्चुअली पे किया कितना, ओ क्यू ई पी तुमने पे किया। ध्यान से देखो, ओ क्यू ई पी this area is nothing but what, total utility। clear? total what, utility। और ये तुमको देना पड़ा, मीन्स एक्चुअली यू पे दिस अमाउंट। क्लियर? तो तुमने पे किया ये, मतलब टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल व्हाट, एक्सपेंडिचर, मतलब तुमने खर्चा किया इतना। मैं कब विचारिছোঁ তোমাৰ টোটেল খৰচ হৈছে এই এৰিয়াটো OQEP, কিন্তু তুমি টোটেল সন্তুষ্টি, মুঠ সন্তুষ্টি যিটো সেইটো পাই আছা OQEF। তেতিয়াহ'লে তোমাৰ টোটেল বা মুঠ যিটো মুঠ সন্তুষ্টিটোৰ এৰিয়াটো চোৱা ডাঙৰ, বিকজ এইটো মুঠ উপযোগিতা মানে হৈছে প্ৰান্তিক উপযোগিতাৰ যোগফল। সো প্ৰান্তিক উপযোগিতাৰ সামেশন বা যোগফল কৰিলে আমি মুঠ উপযোগিতা পাওঁ। তেতিয়াহ'লে মুঠ উপযোগিতা বা মুঠ সন্তুষ্টি পাই আছা তুমি এই এৰিয়াটো, কিন্তু তুমি এইখিনি দ্ৰব্যৰ বিপৰীতে টোটেল টকা খৰচ কৰি আছা এইখিনি, হয়নে নহয়? কৰি আছা। তেতিয়াহ'লে ডেফিনেটলি এই বস্তুটোৰ ডিফাৰেঞ্চ ওলাই যাব কিমান, চোৱা PEF, means PEF means total এই এৰিয়াটোৰ পৰা তুমি এই এৰিয়া যিটো তুমি স্পেন্ড কৰিলা সেইখিনিক তুমি ডিডাক্ট কৰি দিয়া। ক্লিয়াৰ? তেতিয়াহ'লে ফাইনেলি তোমাৰ হাতত এই এৰিয়াখিনি থাকি যাব, আৰু এই এৰিয়াখিনি নাথিং বাট হোৱাট, consumers surplus। clear? means consumer surplus finally nothing but what, difference between the total satisfaction whatever you enjoy। clear? তারপরে তুমি মাইনাস করে দিবা কি whatever you actually spent, means মুঠ সন্তুষ্টি যিখিনি পালা সেই মুঠ সন্তুষ্টিৰ পৰা তুমি সেই দ্ৰব্যটোৰ বিপৰীতে বা সেই দ্ৰব্যটোৰ বান্ডলছৰ বিপৰীতে যিখিনি টকা তুমি খৰচ কৰিলা সেইখিনিক বাদ দিবা। ক্লিয়াৰ? তেতিয়াহ'লে বাদ দিলে ডেফিনেটলি যিখিনি থাকিব সেইখিনি হৈছে কনজিউমাৰ্ছ সারপ্লাস। ক্লিয়ার? তার মানে তুমি টোটাল সন্তুষ্টি পাইছা, ধরা এইটো শর্টকাট বুঝি লোৱা এইটো, আৰু তুমি টোটাল টকা স্পেন্ড কৰিছা,
টোটেল টকা স্পেণ্ড কৰিছা সৰু তে টোটেল ছেটিছফেকশ্যনটো ডাঙৰ টোটেল খৰচাটো কৰিছা তুমি কম তেতিয়াহ'লে টোটেল সন্তুষ্টি যদি ধৰি লোৱা তুমি 100 বুলি ধৰি লৈছোঁ আৰু স্পেণ্ড কৰিছা তুমি 70 টকা তেতিয়াহ'লে ডেফিনেটলি তাৰ ডিফাৰেঞ্চ ওলাই যাব কিমান 30 that 30 is said to be consumer surplus so simply consumer surplus nothing but what difference between total utility or total satisfaction minus total money you are actually spent okay so consumer surplus nothing but total utility minus number of units purchased multiplied by per unit price clear আৰু হেতু ডায়াগ্ৰামেটিক্যালি উৰাইছে total satisfaction to তোমাৰ এইখিনি আৰু total money spend কৰিছা তুমি এইখিনি আৰু বাকি যিখিনি এৰিয়া তোমাৰ থাকি গ'ল PEF हेखिनी हो जाए भुगतान उद्धृत क्लियर मतलब तुम टोटल सेटिस्फेक्शन जितना तुमको मिल रहा है टोटल सेटिस्फेक्शन तुमको मिल रहा है ये एरिया और तुम उसका अगेंस्ट में पे कर रहे हो ये एरिया तो फाइनली हाथ में जो तुम्हारा रह जाएगा दिस इज सेड टू बी कंज्यूमर सरप्लस क्लियर लेकिन जाते जाते एक चीज़ बोलते जाता हूँ क्लियर मतलब कंज्यूमर सरप्लस में कंज्यूमर को लॉस भी हो सकता है कंज्यूमर सरप्लस में कंज्यूमर का लॉस भी हो सकता है मतलब लॉस इन कंज्यूमर सरप्लस हो भी सकता है लॉस इन कंज्यूमर सरप्लस तभी होगा जब मार्केट में वही चीज़ का एक्चुअल प्राइस बढ़ेगा क्लियर मतलब लॉस इन कंज्यूमर सरप्लस ये चीज़ हो गया मतलब मैं बोलना चाहता हूँ लॉस इन कंज्यूमर ये तो हो गया ये कॉन्सेप्ट हो गया ठीक है तो लॉस इन कंज्यूमर सरप्लस कब होगा लॉस ओके लॉस इन कंज्यूमर सरप्लस कब होगा लॉस इन कंज्यूमर सरप्लस कब होगा जब मार्केट में एक्चुअल प्राइस मार्केट में एक्चुअल प्राइस क्या होगा बढ़ेगा मतलब व्हेन एक्चुअल प्राइस इन द मार्केट ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड्स मतलब एक्चुअल प्राइस मार्केट में जब बढ़ेगा क्लियर तब कंज्यूमर सरप्लस में लॉस होगा क्लियर मतलब कंज्यूमर सरप्लस घट जाएगा मैं कब বিচাৰিছোঁ ভোক্তাৰ উদ্ধৃতত ভোক্তাৰ লোকচানো হ'ব পাৰে যদি বজাৰত সেই দ্ৰব্যটোৰ প্ৰতিটো গোটৰ কি প্ৰকৃত দৰটো বৃদ্ধি পায় ओके तो আজিলে মই कंज्यूमर सरप्लस कन्सेप्टটো বুজালো रिलेटेड टू ভোক্তাৰ ভাৰসাম্যতা বা ভোক্তাৰ আচৰণ ओके नेक्स्ट क्लासত कंज्यूमर सरप्लसত লস সিচুৱেশ্যনটো মই দেখুৱাব যত্ন কৰিম ओके थैंक यू